Hello students, in this video we are going to discuss a question for class 12 from chapter 8 application of integrals. The question I have picked is from miscellaneous exercise question number 15. What the question says, let us see. It says find area of the region represented by these curves. First of all, let us try to understand what are these two curves. Two curves y square less than or equal to 4x. You know, y square is equal to 4x represents parabola, right opening parabola, and if I write 4x square plus 4y square is equal to 9, this is representing a circle with center at origin and radius as 3/2. But now here I have less and here also less than is equal to. It means these two are representing some regions. So first of all, as you know, while finding out the area under curves, most important first part is to draw the sketches of the curves that are given to me. So let us do the sketching part first. One is my parabola, y square is equal to 4x. First of all, let us say y square is equal to 4x. I know this is this kind of a parabola. Now I am saying y square less than is equal to 4x. When I say y square less than is equal to 4x, it means I am talking about the area inside of parabola. And when I say inside of parabola, I am marking this only. अभी ये वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ. Then let us plot this circle. ये सर्कल क्या है? जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 3/2 है. It means this circle will be somewhat like this. और यहां पर भी क्या है? x square 4x square plus 4y square less than is equal to 9. When I say less than is equal to 9, again I am talking about inside of circle और equality भी है. So on the circle is also my area. So इसका arrow भी अंदर की तरफ फॉल कर रहा है. So if I look at the common area is ये वाला area. This area is the common area. Right? This is the area which I want to calculate. और इसमें भी अगर हम देखें तो मेरा पैराबोला और सर्कल दोनों ही सिमेट्रिक कर्व्स हैं. सो अगर मैं इसको O कह दूं, ये पॉइंट A बोल दूं, ये पॉइंट B बोल दूं, तो मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट ट्वाइस द एरिया OAB. राइट? नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू take into consideration here is, if I look at this area and look at this point A, before point A, ये जो vertical strips मैंने काटी हैं, इनका one end is on this curve. And what is this curve? This is y square is equal to 4x. But after point A, ये end आपका fall कर जाएगा इस curve के ऊपर, which is 4x square plus 4y square is equal to 9. Right? So I have to write my area, my required area, which is 2 times area OAB in terms of two definite integrals. One will go from this point to this point, another will go from this point to this point. Now I know what this point is. If radius of the circle from here, that is 3/2, it means ये वाला जो B point है उसके coordinate हुए 3/2 and 0. ये ओरिजिन है ऑब्वियसली, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0. अब मुझे यहां पर ब्रेक करनी है क्योंकि इस पॉइंट से पहले मेरा अपर एंड पैराबोला पर, लोअर एंड एक्स एक्सिस पर है, लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट माय अपर एंड इज ऑन द सर्कल एंड लोअर एंड इज ऑन द एक्स एक्सिस. तो आई नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू गिवन कर्व्स. और हमें मालूम है कि मेरे को दो कर्व्स दे रखी हैं. वन इज से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अनदर वन इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, और इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करें? यहां से y स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां डाल देते हैं. क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 9. 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो मुझे क्या चाहिए? नाउ आई वॉन्ट minus 36 as the product and 16 as the sum.
36, तो 18 और 2 लेंगे तो ये प्लस का 18 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. Take out 2x common from here. What I'm going to get? I'm getting 2x plus 9 minus 1 common. 2x plus 9 is equal to 0. So 2 points, intersection points, which I'm going to get from here will be 2x plus 9 is equal to 0. So x की value 1/2 और x की value minus 9/2. It means ये जो मेरा A point आ रहा है, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पर मेरी कर्व चेंज हो रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2 है. अगर x को यहाँ 1/2 डाल दूं कर्व में तो y² 2 है, इसका मतलब y की वैल्यू √2. ऑल्दो ये y नहीं चाहिए मुझे, बट आई हैव कैलकुलेटेड A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एट हाफ एंड √2. नाउ आई एम रेडी टू फाइंड दिस एरिया. कैसे निकलेगा अब ये एरिया, उसके लिए मेरे इंटेग्रल्स क्या क्या बनेंगे एक बार जरा हम उनको देखते हैं. इंटेग्रल निकालने के लिए एरिया जो मुझे चाहिए, आई एम सेइंग अगेन 2 टाइम्स एरिया OAB. इसको भी अब ब्रेक कर दिया 2 टाइम्स. पहला इंटेग्रल x की जो आपकी लिमिट्स वेरी करेंगी वो 0 से हाफ में वेरी कर रही है. और अंदर मुझे एक्सप्रेशन किसका चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए मुझे y का. वो y वाली वैल्यू कहां से आएगी? इस कर्व से आएगी. यहां से y निकालोगी तो क्या? √4x दैट इज 2√x. और जब हम हाफ से 3/2 में जाएंगे, क्योंकि अब मैं यहां से यहां मूव कर रहा है मेरा x. अब इस इंटरवल में जो कर्व है वो ये सर्कल, इस सर्कल में से अब मुझे y फाइंड आउट करना है. तो लेट अस सी व्हाट विल आई डू. 4x² plus 4y² is equal to 9. So that gives me 4y² is equal to 9 minus 4x². और फिर क्या करते हैं? 4 से इधर डिविजन करते हैं. तो यहां से मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू देखिए क्या आ रही है मेरे पास. वो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है, let me put it like this. Y की वैल्यू which I am getting is √of 9/4 minus x². So, जब मैं जा रही हूं हाफ से 3/2 में, तो हाफ से 3/2 में जो मेरा इंटेग्रल है, दैट इज इंटेग्रेंड आई शुड से, वो ये है. It means I need to solve these 2 integrals to reach at the required area. चलिए जी, अब ये इंटेग्रल देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा काम हमें यहाँ पे करना नहीं है. देखिए 2 टाइम्स 0 से 1/2, आई एम राइटिंग इट अगेन हियर, 2√x dx. दिस इज फर्स्ट इंटेग्रल. 1/2 to 3/2 √of 9/4 minus x² dx. This is the another integral. 2 times √x का इंटेग्रल. When I'll do √x का इंटेग्रल, this is going to be x raised to power 3/2 और डिनोमिनेटर में 3/2. तो इसका जो 2 है वो मैं यहाँ पर कंबाइन करके लिख रही हूँ. 4x पावर 3/2 अपॉन 3, और इसमें जो मेरी लिमिट्स जा रही हैं वो जा रही हैं 0 से लेकर के 1/2 तक. अब नेक्स्ट इंटेग्रल को जब मैंने सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर बोला. यहाँ मेरा जो फॉर्मूला जाएगा दैट इज इंटेग्रल ऑफ a² माइनस x². एंड a² माइनस x² इंटेग्रल के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज x/2 √of a² माइनस x² plus a²/2 and along with it sine inverse of x/a. Now let us apply this formula here. अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा a क्या बनेगा? 3/2, because 9/4 is the square of 3/2, तो a है 3/2. शुरुआत करते हैं फॉर्मूला लगाने की. x/2 अंडर रूट, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, 9/4 माइनस x² प्लस a² इज 9/4 और ये नीचे 2 रखा मेरे पास. साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज 3/2, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3 और लिमिट डलनी है हाफ से 3/2 में, और ये पूरे के बाहर पड़ा था ये 2. दिस 2 इज आउटसाइड बोथ द इंटेग्रल्स. दोनों को हमने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया. ये तो सीधा x पावर n से सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला लगा √of a² माइनस x².
सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। देखते हैं जरा लिमिट को पुट करने से मेरे पास क्या क्या कुछ बनता है। पहले इंटीग्रल में ये 2 मेरा सबसे बाहर ही पड़ा है, इसको तो बाहर ही रहने देंगे। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 डालूंगी तो मेरे पास यहाँ आ रहा है x रेज टू पावर 3/2 और मैंने x को डालना है यहाँ पर, क्या डालना है बोला, 1/2। सो दिस इज 4/3 1/2 रेज टू पावर 3/2। और जब 0 डालोगे तो 0 ही हो जाना है, ठीक है जी। तो ये तो मेरा यहीं पर फिनिश हो गया इंटीग्रल। फिर अगले पर चलते हैं। अगले में मैंने x को डालना है पहले 3/2। जब आप x को यहाँ 3/2 डालेंगे तो ये टर्म बनी 3/4। लेकिन जब आप यहां पर इसको 3/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 डालने से ये टर्म आपकी 0 हो गई। इसका मतलब ये टर्म मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। यहां पर जब आपने डालना है तो पहले क्या बन रहा है, ये है 9/16 साइन इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा बोला, यहां x को डालोगे 3/2, 3 कैंसिल 2 कैंसिल, सो मेरे पास आ रहा है 9/16 साइन इनवर्स 1। ये वैल्यू मुझे मिली जब मैंने x को डाला क्या बोला, 3/2। सो मुझे मिल रहा है 9/16 साइन इनवर्स 1। अब अगली वैल्यू मुझे डालनी है माइनस करके, कौन सी वैल्यू डालनी है बोला, 1/2। जब यहां 1/2 डालोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/4, 9/4 माइनस 1/4 विद इन अंडर रूट। आगे चलते हैं, आगे जाएंगे तो मिलेगा 9/16 साइन इनवर्स ऑफ, x को डालना है आपने 1/2, तो 1/2 डालेंगे तो बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो 9/16 साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर 2 पड़ा है, 4/3, यहां देखो 2 पावर 3/2 मीन्स 2√2। डिनोमिनेटर में मेरे पास चला जा रहा है 2√2। अगली टर्म पर चलते हैं, 9/16 साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस, ये है आपके पास 1/4, ये क्या हो जाएगा 9 - 1 8/4, 2 मीन्स √2 और साथ में है प्लस 9/16 साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू मुझे एज सच नहीं मालूम है, तो मैं इसको एज सच ही रखूंगी, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं करना। अब यहां देखते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल, ये √2 को नीचे रखने की बजाय हम क्या कर दें, आई राइट इट एज 4√2 अपॉन 6, ठीक है जी। और ये 4 और 6 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2√2/3। चलिए अभी ऐसे ही रख लेते हैं। यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास, ये हो गया मेरे पास, ये बाहर वाला 2 अभी इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस टर्म के साथ 2, ये 2 कैंसिल हुआ। ऐसे ही जब इसके साथ इसको लेकर के जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9/16। मैं क्या कर रही हूं, यहां तो मैंने सिंप्लीफिकेशन, ये 2 सबके बाहर था, इस टर्म के साथ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे किया तो नीचे 6 बन गया, सो 4√2/6 आ गया। अगली टर्म में ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 9/16। अगली टर्म में क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस √2/4 माइनस 9/16। यहां पर भी अब ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन बाकी है, तो ये 2 और ये 4 जाएगा तो √2/2, इससे जाएगा तो 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब आपके पास ये 2 टर्म्स को आप कंबाइन कर सकते हो, ये 2 टर्म्स तो ऐसे ही रहने वाली हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास यहां से जो बनेगा दैट विल बी 9π/16 प्लस 4√2/6 माइनस √2/2 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये 2 को आप कंबाइन कर सकते हो फर्दर इफ यू फील लाइक। ओके जी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।